السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفرات و شفات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں اسلام میں اتوارث کلام پاک کے ترجمے کے سلسلے میں آگے کی طرف چلتے ہیں۔ دورہ القرآن سورہ البقرہ کے 11ویں رکوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تمہارے دل پہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، امی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو، مومنین کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبرائیل ومیکائیل ان اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل، میکائیل اور تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَةٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف نازل کیا روشن آیتیں، بینات یعنی اتاری۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، جو فاسق ہوں گے وہی ان کے منکر ہوں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، مصدقا لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ وراء ظہورہم وکأنہم لا یعلمون، تو اللہ کی کتاب اپنے پیچھے پھینک دی، گویا وہ علم کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان، یعنی یہاں پہ ہیکل سلیمانی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ سلطنت سلیمان کے زمانے میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تیری آزمائش میں، تو اپنا ایمان نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے اور جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، وَلَا يَنفَعُهُمْ نفع نہ دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ،
اور अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो अल्लाह के यहाँ का सवाब अच्छा है। लौ कानू यालमून, किसी तरह उन्हें इल्म होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने देखा कि कुल मन काना उदुउल लिल जिब्रील इन्नहु नज़लहु अला क़ब्लिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बशरन लिल मोमिनीन। तुम फरमा दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो। जिब्राइल रूहुल कुद्स को कहते हैं, जो सारे बतौर ज़ाहिर में सारे नबी 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, सबके पास अल्लाह का पैगाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए और उन लोगों ने अपने जुबान मुबारक से अपने उम्मतियों को पैगाम दिया कि अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहा है। अल्लाह तो तुम फरमा दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो तो उस जिब्राइल ने तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये कुरान उतारा और मैं किताबों की तस्दीक फरमाता है। तो उसके बाद से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनसे फरमा दो कि मेरे कल्ब पे जो कुरान उतरा है ये मैं अहले किताब हूँ और मैं इस बात की तस्दीक फरमा देता हूँ। हिदायत और बसारत मुसलमानों को और मोमिनीन को हिदायत और बसारत देता हूँ। हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, हिदायत और बशारत मोमिनीन के लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मन काना उदुउ लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्राइल व मीकाईल फइन्नल्लाह उदुउ लिल काफिरीन। जो कोई दुश्मन हो अल्लाह और उसके दुश्मन और उसके रसूल और जिब्राइल और मीकाईल का, तो अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है मेरे महबूब फरमा दो कि जो मेरे महबूब का और मेरे इन फरिश्तों का, मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रर फरिश्तों का जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें भेजी हैं, नाजिल की हैं। और मा यफ़रु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और वही लोग उसके मुनकिर होंगे जो फासिक होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इन आयतों का मुनकिर वही होगा जो फासिक होगा। मुनकिर माने ये नहीं है जैसे हम अपनी जुबान से कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं, लेकिन हम तो जानते नहीं कि इन आयतों में हमारे लिए क्या उतरा है। अल्लाहु अकबर। और हमें ये जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन आयतों में हमारे लिए क्या खबर, क्या इल्म, क्या हिकमत हमारे लिए दी है। अल्लाहु अकबर। हम ये जाने और अपनी जिंदगियों में उतारें तब, और अगर हमने खाली जान लिया और अपनी जिंदगियों में नहीं उतारा तो भी फासिक, और अगर हम जानने की कोशिश नहीं की तो भी फासिक। अवकुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम, और क्या जब कभी कोई ओहद करते हैं इनमें एक का फरीक उसे फेंक देता है। कहा कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला से इनमें से ये जो यहूदी और नसारा हैं, ये लोग जब भी कोई ओहद करते हैं, कुछ मानते हैं और कुछ लोग इसमें से झुठलाते हैं, यानी नहीं मानते। फेंक देने का मतलब कि अपने जहनों से निकाल देते हैं। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बहतीरों को ईमान नहीं है। इसमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं ईमान वाला हूँ, ईमान वाला हूँ। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा माअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल लज़ीना उतुल किताब, और जब उनके पास तशरीफ लाया अल्लाह के यहाँ से एक रसूल, जब रसूल को भेजा उनके पास उनकी किताबों की तस्दीक फरमाता है, यानी आपको भेजा और आप उनकी किताबों की तस्दीक फरमा रहे हैं, तो किताब वालों से एक गुरोह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे फेंक दी, यानी सुन लेते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद से इसे मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह उसे अपनी जिंदगियों में नहीं उतारते हैं, ना उस पे बताए हुए तरीके पे चलने की कोशिश करते हैं। गोया वो कुछ इल्म नहीं रखते, यानी उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। और उसके पैरों हुए जो शैतान पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ शैतान से मुराद है बहकाने वाला। यहाँ शैतान से मुराद बताया गया है कि बहकाने वाला, जो बहकाने वाले लोग थे ये उनके पैरोकार हो गए, लोगों को जादू सिखाते हैं और वो जो खराब इल्म, जादू वाला इल्म जानते हैं और लोगों को बताते हैं और उससे मौजज़ात जाहिर करते हैं, यानी लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। और वह जादू जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पे उतरा, 2 फरिश्ते जो हारूत और मारूत थे, दोनों पे जादू उतरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अपने जादू से लोगों को अपनी तरफ माइल करते थे, करिश्मा दिखाते थे। और लोगों की तो आदत है कि जहाँ चमत्कार देखा वहीं नमस्कार कर दिया। आज भी गौर करिएगा, देखिएगा कितना भी सही, अगर कोई साहब लिबास है, कोई खलीफा है,
अगर कोई चमत्कार नहीं है उसके पास तो लोग उसके पास भीड़ नहीं लगाते हैं, और अगर कोई झूठा ही क्यों ना हो और कुछ चंद मौकिल रख के कुछ जादूगरी दिखाने लगे, चमत्कार करने लगे, तो वहां भीड़ लगने लगती है। तो ये कल भी था और आज भी था। तो हारूत और मारूत जादू लेके आए थे, अल्लाह अकबर। और वह दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये कह ना लेते कि हम तो तेरी आजमाइश हैं और तू अपना ईमान न रखो, अल्लाह अकबर। वो लोग अपना जादू उसी को सिखाते थे जो पूरी तरीके से अपना ईमान उनके कदमों में रख लेता था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उनसे सीखते और लोग अपना ईमान बेच के वो जादू सीख लेते थे और जिससे जुदाई डाले। और वो जादू उससे क्या करते थे, मर्द औरत में जुदाई डाल देते थे, माँ बेटे में जुदाई डाल देते थे। अगर आज हम गौर करें तो पता चलेगा कि आज भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। पता चला कि भाई बहू उठी और गई और उसके बाद से किसी मौलवी से कह दी, कुछ पैसे और कौड़ी दे दिया और कहा कि इसे अपने माँ बाप से अपने अहलो अयाल से छुड़ा तो सिर्फ मेरा हो जाए। तो उसके बाद से जाहिरी उल्मा अपने मौकिलों के जरिए फूट डाल देते हैं और इस तरीके की जिंदगी, इनको लगाना, इनको बजाना, माँ से बेटे को छुड़ाना, बीवी से शौहर को छुड़ाना, ये सारी चीजें हारूत और मारूत की जादूगरी में शामिल था, अल्लाह अकबर। यहूदी और नसारा का फेल था, मुनाफिकों और मुनकिरों का फेल था। आज बड़े अफसोस की बात है कि उम्मत मोहम्मदिया में भी ये देखी जाती है, अल्लाह अकबर। और ऐसे मौलानाओं के यहाँ बड़ी भीड़ लगी रहती है और जरर पहुंचाते हैं किसी को मगर खुदा के हुक्म से, और वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान देने वाला, और ऐसी चीज सीखते हैं जो उन्हें नफा नहीं देता, नुकसान वाली चीज सीख लेते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फायदे की चीज से दूर रहते हैं। फायदे की चीज वो है अल्लाह का भेजा हुआ रसूल और उसकी किताब जो है फायदे की चीज है, उससे अपना वादा तोड़ लेते हैं, उन नबियों से मुकर जाते हैं, उन्हें झूठा साबित करते हैं, उन्हें उन पे जुल्म करते हैं, उन्हें शहीद कर देते हैं। और उसके बाद से आज भी देखिए औलिया श्वेतिया का दौर है, अगर आप सच बताइएगा तो लोग आपकी तरफ रागिब नहीं होंगे, लेकिन अगर दो मुवक्किल लेके कोई अगर अपना जादूगरी करिश्मा दिखाने लगे तो लोग उसकी तरफ पहले रागिब हो जाते हैं। और बेशक क्या बुरी चीज है वो जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानें बेच डाली, अपना ईमान बेच डाला, ऐसे इल्म के बदले में जो उन्हें बेईमान बना दिया और उसके बाद से परहेजगारी से रोकता है, सवाब के कामों से रोकता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो अपने जानों पे वबाल लेते हैं और ईमान के बदले में गलत इल्म उन्होंने खरीद लिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमालना हमें ऐसे गलत इल्म से अल्लाह महफूज रखे, क्योंकि हम ऐसे फितने के दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे ये बसा औकात जगह जगह कदम कदम ये सब देखने को मिलता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पंजतन का सदका अल्लाह हमें और हमारे ईमानों को महफूज रखे, हमारे अहलो अयाल को महफूज रखे। और कलाम पाक के इल्म, कलाम पाक अजल से लेके अब तक के लिए लोगों के लिए है, तो हमें ये समझ में आया कि इस दौर में भी हमें इससे सबक हासिल होता है, क्योंकि आज तो ये करिश्मा उरूज पे है। या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस मौला वारिस करम वारिस।